Namaste. You're most welcome to the YouTube channel of Professor Anand Chaudhary, Analytica Ayurveda, and we are starting the rule and regulation. So you know very well we have covered approximate about the rule 161 and we are going to discuss today rule 162. And to summarize, and what to summarize, you are knowing very well that we have discussed the shelf-life period of the different drugs, Ayurveda, Unani and Siddha medicine, and I have concentrated only up to the Ayurveda medicines. And the major difference of the 2009 notification and 2016 notification of the shelf-life period is regarding the Rasaushadhis and the Asam and Arist. From infinite, it has been limited to the 10 year, right? Now, open the book. The golden rule, open the book. If we are going to study anything about the rule and regulation, then without book, it is impossible to do it. So, open the book, and that it is the part 18th. That is the government analyst and inspectors for Ayurvedic, including Siddha or Unani drugs. See, just back in the last week, on 15th December, I was at Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University, which has organized a CME on the Rasas and the Bheshaj Kalpana, Jodhpur. And the title assigned to me, as usual, it is about the knowledge of the DC Act, GMP, WHO GMP, EU GMP, and the important thing was the Ayurvedic drug inspectors, the role and the responsibilities of the Ayurvedic drug inspectors. So the appointment is under the section 33G, but duties are emphasized here under rule 162. So first we will read as usual and then we will discuss the things. The rule 162, duties of inspector specially authorized to inspect the manufacture of Ayurveda, including Siddha or Unani drugs. Subject to the manufacture of the controlling authority, subject to the instructions of the controlling authority, it shall be the duty of an inspector authorized to inspect the manufacturer of Ayurveda, including Siddha or Unani drugs. जो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इन जनरली द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, दैट इज द डायरेक्टर ऑफ द स्टेट इफ इट इज द टेक्नोक्रेट, नॉट द ब्यूरोक्रेट. बट इंस्पेक्शन मे बी on the orders of the technocrat also if he or she is holding the position that is the controlling authority, that is the director, or whatsoever the name may be as per the state, right? Somewhere it is commissioner. So as per the instructions of the controlling authority, that is the most probably the director, inspector have to move to inspect the site of the manufacturing. The clause 1 is here, to inspect not less than twice a year all premises licensed for manufacture of Ayurveda, including Siddha or Unani drugs, within the area allotted to him, and to satisfy himself that the conditions of the license and the provisions of the act and the rules met thereunder are being observed. Point is this, साल में 2 बार जरूर जाना है, not less than 2 in a year, by the instructions of controlling authority. और क्या देखना है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग साइट पर आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जितने भी एक्ट अप्लीकेबल हैं, जितने भी रूल्स अप्लीकेबल हैं उस यूनिट पर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रोविजन सेक्शन 33 के अंतर्गत प्लस ड्रग रूल्स 1945 के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं मैन्युफैक्चरर के लिए जो उस यूनिट पर अप्लाई होते हों, वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि नहीं. आई मीन
कायदे से उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये ड्यूटी आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर की है। नेक्स्ट क्या कहते हैं ये सेकंड, दैट इज द सेंट to send forthwith to the controlling authority after each inspection, to send forthwith to the controlling authority after each inspection a detailed report indicating whether or not the conditions of the license and the provisions of the act and the rules met thereunder are being observed। जाएंगे ही, और जाएंगे तो रिपोर्ट भेजेंगे ही, और रिपोर्ट आपको भेजना है, और वो कैसे रिपोर्ट भेजने हैं उसको भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, राइट। थर्ड इज हियर टू टेक सैम्पल्स ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रीमाइसेस एंड सेंड देम फॉर टेस्ट और एनालिसिस इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स। खाली घूमने फिरने नहीं जाना है, खाली लॉ को पेपर पर ही नहीं देखने जाना है, लेकिन उसकी सैम्पल्स को भी देखना है कि वो सैम्पल्स को आपको एनालिसिस के लिए भी भेजना है, राइट, रिपोर्ट के साथ। थर्ड पॉइंट इज द सैम्पल। देन फोर्थ पॉइंट, टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेट देयर अंडर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वायलेशन कर रही है और एक्ट एंड रूल्स का, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन मतलब रिपोर्ट, पेनाल्टी, या अगर कोर्ट में जाना है तो वो सारा काम इंस्पेक्टर साहब को करना है। और ये काम करने के डर के चलते ही बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि चैन से नौकरी करो, चैन से जियो, क्या झंझट में पड़ना है। अगर ये आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर साहब लोग अपना काम करते ढंग से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, तो बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल और मिस ब्रांडेड और एडल्ट्रेशन की समस्याएं नहीं होती। अभी जो पिछले महीने में गुजरात कांड हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जो ग्लोबल हर्बल फार्मा का जो आईपीएस श्री नीरज पांडे, एसपी देवभूमि द्वारका ने जो खुलासा किया पूरे 3 महीने की तपास के बाद, तपास गुजराती में बोलते हैं पूरी इस पूछताछ और इंक्वायरी को, तो वो चीज़ें नहीं होती। बेसिकली अगर कोई वहाँ पर अगर गवर्नमेंट सेक्टर से किसी को अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए, माइंड इट, मेरी भाषा पर ध्यान दीजिए, कि गवर्नमेंट सेक्टर से अगर किसी को अकाउंटेबिलिटी पहले बनाया जाना चाहिए तो वो उस एरिया का आयुर्वेदीय ड्रग इंस्पेक्टर है, बशर्ते कि वहाँ कोई अपॉइंट हो। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बहुत लेस है भी तो उनकी एरिया इतनी बड़ी बड़ी है कि वो पहुँच तक नहीं पाते हैं। लेकिन जो भी हो, कानून के हिसाब से, रूल 162 के हिसाब से ये आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो जा करके वहाँ देखता कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। और देखिए 4 कॉलम दिए हुए हैं रूल 162 में, और फर्स्ट ये कहता है कि आपको अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी के आदेश पर साल में कम से कम 2 बार हर यूनिट में जाना है। जो भी आपकी एरिया में यूनिट्स हैं, whatever the units are there in your area, your jurisdictional area, you have to inspect to those places twice in a year, and you will see what you will see. You have to observe all the provisions of the Act and the rules. Act means Drug and Cosmetic Act 1940. Rules means Drug Rules 1945. And whichever is applicable to that unit, that must be observed very, very honestly, carefully. This you have to inspect because you are Ayurvedic drug inspector. Number 2 is here, you have not to inspect only, but you have to report to whom? That is your controlling authority, state licensing authority. You have to report to him. Third,
you have to take samples, and there is we will discuss all these things. There is a provisions to take samples. There is a certain rules to take samples, and even the sealing of the samples. There must be a video recording when the samples are being sealed, and to where to send the samples. These are just rule 163, 164. We will go through all that. But here, today, when we are interacting with this, the rule 162 is just for instructing what are the duties of the Ayurvedic drug and Ayurvedic drug inspector. So it means you have to take sample and seal and to send all that. And fourth, if sample is reported something wrong, if any law or the act or the rules are not being followed by the manufacturing unit, then to institute the prosecution, दंड देने की भी विधान की शुरुआत आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर को ही करनी है. तो ये रूल 162 डिफाइन करता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर. देन रूल 162A, तो क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग. हाँ, ये क्वालिफिकेशन इस टॉप वाले के लिए है, स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी. यही मैं बोल रहा था ना कि टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट. अगर ब्यूरोक्रेट PCS है, IAS है, तो उसके पास BMS की डिग्री नहीं है, तो वो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं हो सकता. उसके लिए प्रोविजंस हैं रूल 162A में. वो ये है कि क्वालिफिकेशन में, चलिए किताब में देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर licensing of Ayurveda Siddha and Unani drugs, that is the Ayurveda Siddha Unani qualifications as per the Schedule 2nd of the Indian Medicine Central Council Act 1970, 84 of the 1970. फिर एक ये भी यहाँ पर आ गया है, बहुत अच्छी बात है कि B Pharma Ayurved of a recognized university, both are the bachelor degrees. अब बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन समझने की है. स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में यहाँ ये प्रोविजंस दिए जा चुके हैं कि शेड्यूल 2 की डिग्री जो BAMS की है IMCC एक्ट 1970 में, वो होनी कंपलसरी है. प्लस B फार्मा आयुर्वेद डिग्री का भी व्यक्ति वहाँ हो सकता है. लेकिन अब यहाँ पर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है. अगली बार जब ये रिपील होगा, अगला एडिशन जब इस किताब में आएगा या ये इस एक्ट के लिए पार्लियामेंट में जाना ज़रूरी है. रूल्स तो मिनिस्ट्री से भी हो सकता है, ड्रग पॉलिसी सेक्शन से भी हो सकता है इसमें चेंजेस. तो यहाँ पर ये लाना होगा NCISM एक्ट 2020, क्योंकि IMCC एक्ट तो अब रिपील हो चुका है. उसको रिपील हुए भी 3 साल होने को हैं, तो अब ये बदल जाना चाहिए. यहाँ पर ये जो शेड्यूल नंबर है और एक्ट है वो चेंज हो जाना चाहिए. और दूसरा, बहुत सारे B.Pharm आयुर्वेद लोग अभी जानते नहीं हैं. फिर उनके और भी ढेर सारी समस्याएं हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, या जैसे रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है, कुछ ना कुछ लोग अड़ंगा लगाते हैं. तो B.Pharma आयुर्वेद के लिए अभी इतनी संतोष की बात है कि अगर वो स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते कि गवर्नमेंट में उसका अपॉइंटमेंट हो. पहला सवाल तो ये हो गया कि वो गवर्नमेंट में उसका अपॉइंटमेंट हो. तो B.Pharm आयुर्वेद का गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अभी थोड़ी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है. लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट मे बी ए बेटर सिनेरियो. देन द B इज at least 5-year experience in the Ayurvedic Siddha or Unani drug manufacturing or testing of Ayurvedic Siddha and Unani drugs, or enforcement of provisions of the Chapter 4A of the Drug and Cosmetic Act 1940 and rules met thereunder, or teaching, research or clinical practice of Ayurvedic Siddha Unani सिस्टम. सब कोई हो सकता है. एक तरफ कुछ इतना ज़्यादा और है कि कोई भी हो सकता है. बस बताइए कि बस आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, उस गवर्नमेंट में. एटलीस्ट 5-year एक्सपीरियंस इन द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग
manufacturing, testing of Ayurvedic Siddha Unani drugs और enforcement of the provisions of the chapter 4th यानी कि आप ADI वगैरह हों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, और इवन टीचिंग रिसर्च, सारे मास्टर साहब लोगों के लिए खुल गया दरवाज़ा, ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम। अब मैं यहाँ पर अगर आप मेरी बात करिए एक आयुर्वेद के विद्यार्थी की, तो आई शेल सजेस्ट हियर कि दिस ओपन गेट इज़ नॉट गुड। A lot of people are getting the responsibilities but not knowing anything about the responsibility for which they have been assigned. And a junior fellow or some ministerial staff is guiding him to do what for the purpose of the licensing. So here must be a clause that the person who is the state licensing authority should have the qualifications of the PG degree in the Ras Shastra, in the Bheshaj Kalpana or Dravya Gun, or there may be a duty because it is necessary in the state licensing authority that it should be a member of expert of the Ras Shastra and the expert of the Dravya Gun. But the boss, topmost post, should be a PG qualified person. Then it will ensure the more transparency and the more things which may ensure the quality production of the Ayurvedic medicines. Only the teaching experience or the research or even the clinical practice, okay, drug is related with the everything. Without drug, nothing is possible. But if it is specified for the products of the MD Ayurveda, Ras Shastra and the Bheshaj Kalpana and Dravya Gun, then they may serve better. But प्रॉब्लम विल बी व्हाट, यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो डायरेक्टर है उसकी पोस्ट तो रिजर्व कर नहीं दी जाएगी कि नहीं MD आयुर्वेद रस शास्त्र वाला ही डायरेक्टर होगा और MD आयुर्वेद द्रव्य गुण वाला ही डायरेक्टर होगा। नो, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये होना भी नहीं चाहिए। जैसे कि अभी गुजरात के डायरेक्टर डॉक्टर हर्षित शाह हैं और वो MS शल्य हैं, ऐसे भी बहुत सारे, जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश के भी जो डायरेक्टर हैं उनकी MD संभवतया द्रव्य गुण है या क्या चिकित्सा है, मुझे मालूम नहीं है। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते, ना हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर जो भी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का चेयरमैन हो, अगर डायरेक्टर ही होता है हेड ऑफ द स्टेट, तो वो MD आयुर्वेद रस शास्त्र और भेषज कल्पना और MD द्रव्य गुण, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन वहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ADI की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो PG हो रस शास्त्र, भेषज कल्पना या द्रव्य गुण में। सो अब बिल्कुल ये आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर्स की जो नियुक्ति है वो प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए MD आयुर्वेद रस शास्त्र भेषज कल्पना को जो उस स्टेट में काम कर रहे हो। जब आपके पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो तो स्पेशलिस्ट को मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है रूल 163, प्रोसीजर for dispatch of samples to the government analyst and it's received by the government analyst। इसको हम लोग अगले टर्म पर पूर्ण लेंगे। सैम्पल प्रोसीजर रूल 163 आज के लिए इतना ही। रूल 162 and the rule 162A, we have covered the duties of the Ayurvedic drug inspector and the qualification of the Ayurvedic drug inspector or the authority। गड़बड़ है, इंस्पेक्टर का अलग, अथॉरिटी एक अलग चीज़ हो जाती है, बट वॉट्स एवर इट शुड बी, द इंस्पेक्टर मस्ट बी फ्रॉम द ब्रांच एंड इफ द PG क्वालिफाइड देन इट विल बी बेटर फॉर द सिस्टम। नमस्ते, आभार, थैंक यू।